Hello everyone, welcome to the next lecture on the optimization techniques. Today we will discuss the important result known as intersection and union of the convex set. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of optimization techniques in Hindi. तो आप जैसा देख पा रहे हो convex set, example of the convex set, hyperplanes, example of the hyperplanes, all are videos already uploaded for all of you. Now, as I mentioned you, we have already discussed the concept of the convex sets and the hyperplane. So today, based on the concept of the hyperplane, we can learn whether the union and the intersection of the convex set is a convex set or not. मतलब कि आज के लेक्चर का कि अगर आपके पास दो कन्वेक्स सेट है S1 and S2, तो कैन यू से द इंटरसेक्शन ऑफ द S1 and S2 and the union of the S1 and S2 always a convex set or not? Fine, clear? और अगर ये intersection and union दोनों convex set हो गए, then can you say the finite intersection of the convex set and the finite union of the convex sets are also the convex set? That is the two major questions that we will discuss in the today's lecture. तो मैं आपको पहले ब्रीफ कर दे रहा हूं. Intersection of the convex set is always the convex set, but union is not a convex set. Fine. तो यही हम प्रूफ अगले 3 मिनट के अंदर इस वीडियो में देख लेंगे. So पहला रिजल्ट, intersection of the two convex set is a convex set. Fine. तो what I can prove is, I can assume S1 and S2 are the two convex set. Fine. तो मान लेते हैं कि आपके पास S1 and S2 are the two convex set. तो आपका टारगेट क्या है प्रूफ करना? योर टारगेट इज टू प्रूफ S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो कन्वेक्स सेट. यही आपका टारगेट है. तो इसके लिए क्या प्रूफ करोगे आप? कोई दो एलिमेंट ले लोगे x, y. किसको प्रूफ करना है आपको? इंटरसेक्शन को. सो लेट्स से x, y बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन. तो आपका टारगेट क्या है? दैट इज अ CLC ऑफ द x1, CLC ऑफ द x एंड y is also belongs to the intersection. यही आपका टारगेट है. और इसी तरह से हमने इस एग्जांपल्स ऑफ द कन्वेक्स सेट को प्रूफ एंड डिसप्रूफ करा था. तो दैट्स अ सिंपल. इसका क्या मतलब है? अगर x और y इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब x आपका S1 में भी होगा, x आपका S2 में भी होगा. सो आई कैन से x बिलोंग्स टू द SIs एंड y बिलोंग्स टू द SI. यही होगा ना, वेयर I is my 1 and 2. But what is the SIs? S1 and S2 both are given to be convex set. So as S1 and S2 are convex set. तो इसका क्या मतलब हो गया? अगर S1 and S2 convex set है, that means the CLC of X and Y is also the part of the SIs. Fine. So how you can write the CLC? That is a lambda of X plus 1 minus lambda of Y is also belongs to the SI, that is S1 and S2. तो अगर ये इसके अंदर बिलोंग करता है तो उसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा. दैट मीन्स द CLC ऑफ द X एंड Y बिलोंग्स टू द S1 इंटरसेक्शन S2. हेंस S1 इंटरसेक्शन S2 इज माई कन्वेक्स सेट. तो आप देखो, सिर्फ 2 लाइन का प्रूफ आपके लिए लेके आया हूं. इंटरसेक्शन ऑफ द कन्वेक्स सेट इज अ कन्वेक्स सेट. सिमिलरली, the finite intersection of the convex set is a convex set, meaning मान लो कि S1, S2 up to the Sn are my convex set. फाइन. तो आपका टारगेट क्या है प्रूफ करना? कि इन सबका इंटरसेक्शन S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन Sn इज ऑल्सो द convex set. फिर उसी तरह से प्रूफ करेंगे, लेट X and Y belongs to the finite intersection of the convex set. Fine. What does it means? That means X belongs to the each of the Xi's, Y belongs to the each of the Si, and each of the Si's is my convex set. तो अगर each of the Si मेरा convex set है, what does it implies? That implies the CLC of the X and Y is a part of Si. Fine. अगर हर नंबर Si के अंदर है तो इसका मतलब ये आपका इंटरसेक्शन में भी होगा. फाइन. दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द S1, S2, S3,
तो वो आपका इंटरसेक्शन में भी हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन्स? दैट इंप्लाइज S1 intersection S2 intersection Sn is my convex set. Fine, and that's the proof of the second result. क्लियर? अब इसको एग्जांपल से आपको समझाऊं। अगर मैं आपको इसके दो मेथड बताता हूं सॉल्व करने के, दो भी तीन भी बता सकता हूं। फाइन, तो पहले डिस्कशन करते हैं फर्स्ट मेथड के ऊपर। देखिए, कभी भी कॉमा लिखा हुआ है बीच में तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। जब भी कॉमा लिखा हुआ है तो आपका टारगेट है इसको प्रूव करना है कन्वेक्स सेट है कि नहीं। अगर आप किसी CSR नेट एग्जामिनेशन में हो या किसी क्विज में हो तो आप इसको एक लाइन में आंसर दे सकते हो। सबसे पहले ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, यहां इक्वालिटी है ना, सो दैट इज माई हाइपरप्लेन। फाइन, और सेकेंड पार्ट क्या है आपका, इसे ग्रेटर देन साइन, तो ग्रेटर देन है तो इसका मतलब अपर हो गया, और इक्वालिटी है तो दैट इज माई क्लोज्ड, अपर क्लोज्ड हाफ स्पेस। यही है ना आपके पास। फाइन, और यही हमने यहां डिस्कस करा था हाइपरप्लेन्स में, एग्जांपल्स ऑफ द हाइपरप्लेन एंड द हाइपरप्लेन। क्लियर? एंड वी ऑल नोस एवरी हाइपरप्लेन is the convex set. Fine, and upper closed half space is also the convex set. Clear? तो अगर इसको मैं S1 का नाम दे दूं और इसको मैं S2 का नाम दे दूं, मतलब ये मेरा S1 ये मेरा S2 हो गया एंड दिस साइड इज माई S1। तो कॉमा का मतलब क्या बताया मैंने, इंटरसेक्शन। एंड इफ द टू सेट्स आर माई कन्वेक्स सेट, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू कन्वेक्स सेट इज अ कन्वेक्स सेट is the required proof of this result. Fine, तो आप अपना एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हो, the first equation represent my hyperplane, the second represents upper closed half space, and both are my convex sets. By using the finite intersection of the two convex set is a convex set, therefore given set is my convex set. That is the first method how you can prove in a single line. Second method आपके पास क्या है, मैं अगर इसको इरेज करके आपको सेकंड मेथड बताऊं, सो सेकंड मेथड यू कैन यूज बाय द डेफिनेशन। फाइन, तो आई कैन स्टार्ट विद द एक्स एंड वाई। एक्स आपका क्या है, x1 कोमा x2, और y आपके पास क्या है, y1 कोमा y2। बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ द S। फाइन, तो अगर पहला एलिमेंट x के अंदर है दैट मीन्स 4x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1, एंड सेकेंड इज x1 minus 2x2 is greater than equal to 4. Similarly, 4y1 minus y2 is equal to 1, and y1 minus 2y2 is greater than equal to 4. Then you can define the w, which is as a linear combination of convex linear combination of the x and y, where lambda is 0, 1. Fine, तो ये w भी आपका क्या हो जाएगा, w1 and w2। बाकी प्रोसीजर वैसे कर सकते हो जैसा हमने इस एग्जांपल्स ऑफ द कन्वेक्स सेट में करा था। एंड यू विल बी वेरी सरप्राइजिंग, ये सेम एग्जांपल्स आपको इसी लेक्चर में भी सॉल्व की हुई मिल जाएगी। फाइन, तो आपने वो लेक्चर प्रीवियस ऑलरेडी देख चुका होगे, तो आपको ये सॉल्यूशन सेकंड मेथड से वहां से मिल जाएगा। ये तो हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ द कन्वेक्स सेट। अब हम बात करते हैं यूनियन की। द यूनियन ऑफ द कन्वेक्स सेट नीड नॉट बी कन्वेक्स सेट। फाइन, इंटरसेक्शन तो कन्वेक्स होता है लेकिन यूनियन जरूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, हम एक S1 सेट बना लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एक्स वाई सच दैट x, 0 ले लेते हैं हम भी। फाइन, x, 0 मतलब अगर मैं इस लाइन की बात करूं x एंड y, दिस एलिमेंट ऑफ द R2, तो x, 0 मतलब 1, 0, 2, 0, -1, 0, तो ये आपकी x एक्सिस जो है दिस इज माई बेसिकली x एक्सिस। फाइन, और ये 0, y है, दैट इज माई y एक्सिस। क्लियर? तो x एक्सिस एंड द y एक्सिस, एंड क्लियरली से दिस इज माई कन्वेक्स सेट। नाउ कैन यू से द यूनियन S1 यूनियन S2, तो यूनियन में क्या हो जाएगा, ग्रीन एंड रेड बॉक्स दोनों हो जाएंगे। क्या ये कन्वेक्स सेट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो और एक इधर से ले लो। फाइन, और जैसे ही आप दोनों को ज्वाइन करोगे तो देखो ये वाले पॉइंट बाहर चलेंगे ना। फाइन, सो दैट इंप्लाइज इट इज नॉट कन्वेक्स सेट। फाइन, तो द यूनियन ऑफ द कन्वेक्स सेट इज नीड नॉट बी कन्वेक्स सेट। फाइन, और अगर आप काउंटर एग्जांपल से चलना चाहते हो, यहां पे एक पॉइंट ले लो, लेट्स से 2, 0, और यहां पे आपका पॉइंट क्या हो गया, 0, 2,
और अगर आप इसका S1 यूनियन S2 बनाओ तो क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स ऑफ द x एंड y, तो यूनियन में क्या आ जाएंगे, दोनों एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, x, 0, 0, x। क्लियर? तो आप इसका CLC बना लो, एक मैं x ले लेता हूं 2, 0 और एक y ले लेता हूं 0, 2, मींस ये मेरा y हो गया, ये मेरा x हो गया। तो आप एक CLC बना देते हैं, लैम्डा x 1 माइनस लैम्डा y। फाइन, लैम्डा की वैल्यू कोई ले लेते हैं, हाफ ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, 1/3 ले लो, 1/4 ले लो, तो कितना वैल्यू हो गया ये, हाफ, 2, 0, 1 माइनस लैम्डा इज अगेन हाफ, 0, 2, तो करो किसको, कितना आ गया 1, 1। क्या ये आपका S1 यूनियन S2 में बिलोंग करेगा? करेगा? ये नहीं करेगा, बिकॉज यूनियन में कैसे एलिमेंट्स हैं, चाहे तो उसका फर्स्ट कंपोनेंट नॉन जीरो हो और चाहे सेकंड कंपोनेंट नॉन जीरो हो, लेकिन एस में तो दोनों ही नॉन जीरो है ना आपके पास, तो इसका मतलब दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन। तो देयरफॉर यू कैन से S1 यूनियन S2 नीड नॉट बी कन्वेक्स सेट। क्लियर? तो अगर आपका S1 यूनियन S2 कन्वेक्स सेट नहीं है तो आपका ये फाइनाइट इंटरसेक्शन, finite union of the convex set is not a convex set. Fine, लेकिन intersection is always the convex set. चलिए, ये 3 क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं। देखिए यहां पे कॉमा लिखा हुआ है, दिस ऑल आर माई इंटरसेक्शन, तो आपको इंडिविजुअल प्रूफ करना है। दिस द लोअर क्लोज हाफ स्पेस, दिस द लोअर क्लोज हाफ स्पेस, बोथ आर कन्वेक्स सेट्स एंड द कन्वेक्स सेट्स। फाइन, सो आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करिए, one with the help of the hyperplane and second with the help of the examples of the convex set method se bhi. So I hope you have really enjoyed this session too. Let me know if you feel any doubt. We will see the next lecture, that is a feasible reason of the LPP. Till then you can share this video with your friends, like and comment on the videos. Best of luck students, happy learning.